Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, PhD Digital Maths. Today we are going to solve the sample paper 5. Up to 4 हमने कर चुके हैं and hopefully you all are doing practice very well. So आज हम लोग sample paper 5 करने वाले हैं. Section A. In today's session, I'm going to complete section A. In the next session, हम section B करेंगे. चलो, first question. The largest number which on dividing 70 and 125, 70 and 125 leaves remainder 5 and 8 respectively. जब भी रिमाइंडर लीव है करके आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट माइनस करना है. 70 से 5 माइनस होगा, 125 से 8 माइनस होगा. Here you will get 65 and here you will get 117. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप, लार्जेस्ट नंबर बोला है. जब भी लार्जेस्ट नंबर दिया जाता है, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, HCF ऑफ 65 and 117. सो उसके लिए व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65? 5 multiplied by 13. 13 5 are 65. चलो ऐसे भी करके दिखा देती हूँ आपको. 5 1s are 5 and 13 1s are 13. Okay. Now 117. 117 का करते हैं. पहले 3 से, 3 3s are 9. Again 9s are 13. 3s are 3 1s are. So here, what are the factors? 3 square into 13. Therefore, HCF क्या होता है जो कॉमन रहता है? So 13 is the correct answer. Option B. Option B is the correct answer. Second question, if k plus 1 is equal to sec square A whole multiplied by 1 minus sine A whole multiplied by 1 plus sine A. Okay, this is the question given. Then we need to find out the value of k. हमें क्या ढूंढना है? k का वैल्यू ढूंढना है. पहले तो फिर हम लोग RHS सॉल्व करेंगे. k plus 1 is equal to sec square A multiplied by, this is the formula of a square minus b square, that is a plus b and a minus b. So here a is 1 and b is sine a. So यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 1 minus sine square a. a square minus b square की जगह पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए डायरेक्टली 1 minus sine square a. k plus 1 is equal to sec square a multiplied by 1 minus sine square a is the identity. So cos square a. K plus 1 is equal to, instead of sec, we can write here 1 upon cos. This is the reciprocal relationship between the cos and sec. So cos square a. K plus 1 is equal to, simplify okay 1. K is equal to 1 minus 1, 0. So answer is option A. Question number 3. Find the length of diagonal of a rectangle. पहले हम एक rectangle draw करते हैं. Okay. And next diagonal का length. So पहले एक diagonal भी हमें यहाँ पे चाहिए. Done. Now we will read the question. Find the length of the diagonal of a rectangle AOBC. AOBC. AOBC एक rectangle है. So question is, we need to find out the length of AB. AB diagonal हमें find करना है. अच्छा, what are the coordinate points? Let's see. A का दिया है 0 and 3. Next is O is 0 0. B is 5 0 and C is not given. C दिया गया नहीं है. ओके, यहाँ पे कैसे हम निकाल सकते हैं? Distance formula we can use here.
So length of AB is equal to, डिस्टेंस फॉर्मूला डालना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, so 5 minus 0 whole square, this is x2 and this is x1, b x2 है and a x1 है, plus 0 minus 3 whole square, this will come under root, is equal to under root 5 minus 0 5, so squaring के बाद 25 plus minus 3 का squaring के बाद 9, so this will be under root 34. So what is the correct answer? Under root 34 units. अच्छा, अगर कोई भी मेजरिंग यूनिट दिया नहीं है, दैट मीन्स cm, m या कुछ भी दिया नहीं है, then only units we can write here. Question number 4. A wire bent in the form of a square. एक वायर है, उसको कौन से शेप में बेंट किया गया है? स्क्वायर शेप में. चलो यहाँ पे देखते हैं, एक स्क्वायर शेप में एक वायर को बेंट किया गया है. Encloses an area of 121 cm square. So ये जो स्क्वायर बना है, इसका एरिया कितना है? 121 cm square. If the same wire is bent in the form of a circle, अगर सेम वायर को हम बेंड करेंगे सर्कल शेप में, सर्कल शेप में अगर सेम वायर को बेंड करेंगे, then the circumference of the circle is, अच्छा, circumference of the circle किसके साथ इक्वल होगा? अगर सेम वायर को हम स्क्वायर को जो वायर यूज किए हैं उसी को सर्कल में हमने कन्वर्ट किया है, then perimeter of square is equal to circumference of circle. Am I right? Circumference of circle. सेम ही तो वायर है, हम उसमें कोई एडिट मतलब जॉइंट भी नहीं कर रहे हैं, सेम वायर को हम लोग सर्कल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही सर्कमफरेंस का भी, सॉरी सर्कल का सर्कमफरेंस होगा. बट यहाँ पे तो हमारे साइड नहीं है, ओनली एरिया दिया है. हाउ टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर? सो फर्स्ट हमें क्या करना है? साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है. Usually what is the formula of area of the square? Side into side. That means area of square is equal to side square, right? So area हमारे पास है, side ढूंढना है, तो क्या होगा? जो area है उसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट. So 121 is equal to side square, under root 121 is equal to side, that means 11, कुछ दिया है सेंटीमीटर, yes, 11 सेंटीमीटर is the side. ये आ गया 11 सेंटीमीटर. So what is the perimeter? Therefore perimeter 4 into side, that is 44 cm. इसका perimeter 44 है, then what is the circumference? 44 cm. Circumference also 44 cm. Correct answer is option D. Question number 5. If the distance between the points A का पॉइंट्स दिया है -3, -14 and B का पॉइंट्स दिया है P and -5. So distance जो है ऑलरेडी दिया है, AB is equal to 9 units दे दिया है. So simply we will put the distance formula, x2 minus x1. So P minus of -3 whole square plus -5 minus of -14 whole square. उसका क्या करना है? अंडर रूट. इट विल कम अंडर रूट एंड हियर 9. सो ये LHS का जो अंडर रूट है RHS जाके स्क्वायर हो जाएगा. P plus 3 whole square plus here we will get -5 plus 14. So 9 square is equal to 9 square.
p+3 को वैसे ही रखते हैं, ब्रैकेट ओपन मत करो, क्योंकि यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे भी 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर होता तो हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ती, बट यहाँ पे LHS में भी 9 है, RHS भी 9 है, तो क्या होगा, सिंपली वो 0 पे आ जाएगा। सो p+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, p+3 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू -3। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगर आप देखोगे LHS और RHS में जो कांस्टेंट नंबर्स है वो सिमिलर है, सो डोंट एक्सपैंड द फॉर्मूला। a+b का होल स्क्वायर डालेंगे फिर से फाइनल आपको वही आएगा, फॉर्मूला के अंदर ही डालना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन है -3। Question number 6. In the given figure, DE is parallel BC. DE parallel BC दिया है. Then the value of X is. अच्छा, parallel अगर है तो BPT यूज करना है. AD अपन BD is equal to AE अपन CE. Right? Parallel है तो definitely D और E मिड पॉइंट है ना. So यहाँ पे जस्ट वैल्यू डालो, x अपन 3x + 4 इज इक्वल टू x + 3 अपन 3x + 19. क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ, x 3x + 19 इज इक्वल टू x + 3, हियर 3x + 4, 3x + 4 ही है ना, यस यस। चलो अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x² + 19x इज इक्वल टू 3x², x इंटू 3x, अगेन x इंटू 4 करेंगे, 4x + 3 इंटू 3x 9x + 3 इंटू 4 12। सो LHS का 3x², RHS का 3x² सिंप्लीफाई हो जाएगा, बिकॉज साइन ऑल्सो सेम है दोनों के सामने। अगर ये -3x² होता तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज -3x² LHS में जब जाएगा +3x² हो जाएगा। जब दोनों का साइन सेम टर्म के साइन RHS और LHS में सेम रहेंगे, देन यू कैन सिंप्लीफाई बोथ। 19x 4x + 9x, this will be our 13x + 12. 19x minus 13x is equal to 12. 6x is equal to 12 and x is equal to 12 upon 6, that is 2. So x का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन A is the correct option. 7th question. What will be the number of zeros if the graph of a quadratic polynomial does not intersect at x-axis, does not intersect the x-axis? x-axis के इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो जीरो कहाँ से आएंगे? हमने जो पढ़ा है, जितने पॉइंट्स x-axis को इंटरसेक्ट करते हैं उतने जीरोस हमारा आता है पॉलिनोमियल का। अगर इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो आंसर क्या होगा? जीरो। अगर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 0, 2 कर रहा है तो 2 zeros. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर इज 0. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A, 7th one का। चलो 8th क्वेश्चन. ऑन चूजिंग अ लेटर रैंडमली फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ASSA, SSINA, TION. ओके, ये दिया है आपको बड़ा सा वर्ड, क्या है? एसिनेशन. दिस इज द वर्ड. द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इन द वावल. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? वावल का, बट प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स एंड व्हाट आर द टोटल आउटकम्स, वी विल सी. सो फेवरेबल आउटकम्स के लिए वावल्स काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6. सो फेवरेबल आउटकम्स
फेवरेबल आउटकम्स कितना है 6 एंड टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बट इसका जो प्रोबेबिलिटी है ऑलरेडी गिवन है. So 6 upon 13 is equal to 6 upon 2x plus 1. So we need to find out the value of x here. 6 simplify हो जाएगा. So 13 is equal to 2x plus 1. 13 minus 1 is equal to 2x and 12 is equal to 2x. 12 upon 2x. That means 6 is the correct answer and the answer is option C. Answer क्या है? Option C है. Question number 9. 8 complete हो चुका है. 9. If the diameter of a wheel is 1.54 meter, D is given 1.54 meter. Then the distance covered by it in 100 revolution. कितने रिवोल्यूशन? 100 रिवोल्यूशन का डिस्टेंस हमें निकालना है. अच्छा, एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? रिवोल्यूशन मीनिंग व्हाट? ये हुआ हमारा सर्कल. सो रिवोल्यूशन मीन्स क्या है? एक बार पूरा घूमना. व्हील पूरा एक बार जब घूमता है दैट इज 1 रिवोल्यूशन. ये जो पूरा घूमना है ये कैसे आएगा? कौन से फॉर्मूला से आएगा? एरिया से तो नहीं आएगा. कौन से फॉर्मूला से? सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर. जब भी रिवोल्यूशन का क्वेश्चन दिया जाता है, रिमेंबर चिल्ड्रन, 2 पाई आर तो यूज करना ही है बिकॉज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सो व्हाट वी नीड टू डू हियर? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 100. सो तब हमारा आंसर आएगा. बट हियर वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आर. सो पहले आर निकालेंगे. आर इज इक्वल टू डी अपन 2. दैट मीन्स 1.54 अपन 2. सो इसे हम लोग ऐसे ही रखते हैं. सो डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 अपन 7 मल्टीप्लाई बाय 1.54 अपन 2 मल्टीप्लाई बाय 100. चलो 2 सिंप्लीफाई हो गया. नेक्स्ट और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है. अच्छा, ये डेसिमल में अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है, ऑलरेडी आई सेड व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू? कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन. अगर आपको डेसिमल में प्रॉब्लम हो रहा है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, देन इजीली आप सिंप्लीफाई कर पाओगे. यहाँ पे 7 को सिंप्लीफाई करूंगी तो 0.22 मिलेगा. बट आपको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाती हूँ कैसे करना है. सो 154 अपन 100 मल्टीप्लाई बाय 100. सो यहाँ पे देखो 100 कट हो जाएगा. 7 आपको जाएगा आई थिंक 22. यस, 22. 7 2s अगेन 2s. So 22 multiplied by 22, answer is 484 मीटर. जिसको आ रहा है डेसिमल में सिंप्लीफाई करने का तो यू कैन डू इजीली. अगर जो नहीं आ रहा है सो कौन सा ऑप्शन है? लेट चेक करते हैं. चलो 484 मीटर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 10. 2 alarm clock ring their alarms at regular intervals at 50 seconds and 48 seconds. 50 seconds में एक बार and 48 seconds में और एक बार ring होता है alarm clock. If they first beep together at 12 noon. 12 noon को दोनों together beep होते हैं. ठीक है. And at what time again they will beep. So ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे तो लार्जेस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट कुछ नहीं है, क्या करना है? So ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसका एलसीएम निकालना है.
ऐसे वाले क्वेश्चन में और भी है आपका, साइकिलिंग का आता है, साइकिलिंग कर रहे हैं एट अ टाइम व्हेन दे विल मीट अगेन, 3 फ्रेंड्स साइकिलिंग। सो ऐसे वाला जब क्वेश्चन आ रहा है एलसीएम करना है। सो फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 50। सो हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर एंड 48 का आपका 2 to the power 4 multiplied by 3. So what is the LCM? LCM of 50 and 48 is equal to 2 to the power 4 multiplied by 3 multiplied by 5 square. So answer is 1200 seconds. Okay, 1200 seconds है, तो 1200 seconds को हमें क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। बिकॉज क्वेश्चन पूछा है कि 12 बजे दोनों बीप होते हैं, आफ्टर दैट दोनों फिर से कितने बजे होते हैं, तो सेकेंड्स में तो हम रख नहीं पाएंगे, उससे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 1200 seconds इज इक्वल टू कितना मिनट होगा, 20 minutes, right? 1200 seconds is equal to 20 minutes. So after 12 noon, 12 होने के बाद 20 minutes को फिर से बीप करेगा। So therefore टाइम क्या होगा, 12:20 PM। 12 बजने के बाद 12:20 के बाद फिर से दोनों एट ए टाइम बीप करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 12:20 PM। Question number 11, 2 dice are thrown together. Then the probability that sum of the 2 numbers on the dice will be multiple of 4. अच्छा, पहले क्या करेंगे, what are the outcomes देखेंगे। पहले total outcomes हमें देखना है। So what are the outcomes? First we will see how many outcomes we are getting, वो पहले देखना है। अच्छा 2 है तो कितने होंगे, 36 आउटकम्स आएंगे। टोटल आउटकम्स आपका 36 आएगा। कैसे आएगा, 1 1 एंड 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। दैट मीन्स फर्स्ट डाइस में अगर आपका 1 नंबर आ रहा है, सेकेंड डाइस में 1 आ सकता है, सेकेंड डाइस में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। सो ये हुआ। नेक्स्ट आपका फर्स्ट डाइस में अगर 2 है तो यहाँ पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलर वे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट 4 वैसे ही निकालना है, 5 निकालना है एंड द लास्ट वन 6। सो यहाँ पे भी एक आएगा 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। दिस विल बी 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and the last one 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. So how many total outcomes, 1 2 3 4 5 6 6 6 are 36. So total outcomes कितना आए हैं, 36. So question is what, probability that the sum of 2 numbers on the dice will be the multiple of 4. That means 4 से वो divisible होना चाहिए sum. अभी हमें favorable outcomes निकालना है। 1 plus 1 2 होता है। So 2 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं। 4 2 के टेबल में आता है, तो ये क्रॉस हो गया, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट 1 plus 2 3 is not divisible by 4. 1 plus 3 4, so 4 के टेबल में 4 आता है। नेक्स्ट 1 plus 4 5, so 5 भी नहीं आ रहा है। 1 plus 5 6, 6 also divisible, not divisible by 4. 1 plus 6 7, no. 2 plus 1 3, no. Again 2 plus 2
4, 2 plus 3 5, 2 plus 4 6, 2 plus 5 7, 2 plus 6 8, अगेन 8 आता है 4 के टेबल में. 3 plus 1 4, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 9 नहीं. 4 plus 1 5 no, 6 no, 7 no, 8 9 नहीं आता है, 10 नहीं आता है 4 के टेबल में. 5 plus 1 6 नहीं आता है, 7 no, 8 yes, 9 no, 10 no, 11 no. 6 plus 1 7 no, 8 yes, 9 no, 10 no, 11 no. 6 plus 6 12 is yes. This is divisible by 4. So how many favorable outcomes are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So how many? 9. ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना लिखा है. आपको अगर आ रहा है तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट. So therefore required probability is equal to 9 upon 36 1 upon 4. Correct answer is option B. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. इवेल्युएट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है? पॉलिनोमियल दिया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं. ओके, पॉलिनोमियल क्या है? 2x² प्लस 14x प्लस 20. चलो ये क्लीन कर लिया. क्वेश्चन नंबर 12. Polynomial is 2x² plus 14x plus 20 is equal to 0. अच्छा, कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40² आ रहा, x² आ रहा है, और प्लस माइनस करेंगे तो 14 आना चाहिए. 40 ना, यस. तो फिर एक काम करते हैं, देखो 2 हर एक किस्म से है, कॉमन निकाल लेते हैं तो और थोड़ा इजी होगा. 2 कॉमन लिया तो 7x plus 10 is equal to 0. So x² plus 7x plus 10 is equal to 0. 2 इधर डिवाइड हो गया. अभी कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आता है एंड प्लस माइनस करने से 7 आता है? So x² plus 5x plus 2x plus 10 is equal to 0. 2x एंड 5x को मल्टीप्लाई करोगे तो 10x² है एंड प्लस करोगे तो 7x है. दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है. सो x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 5 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अभी ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? दोनों में x प्लस 5 है तो कॉमन ले लेंगे. नेक्स्ट जो बाकी है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2. देन व्हाट आर द टू zeros? -2 and -5. ऑप्शन A is the correct option. Question number 13. Given two triangles ABC and DEF. ABC and DEF आपको दो ट्राइंगल दिया गया है. If ABC similar DEF, ABC DEF किसका सिमिलर है? 2AB is equal to D and BC is equal to 8. Then find the length of the EF. So given क्या है? ABC similar DEF, right? So we can write here AB upon DE is equal to BC upon EF. AB upon DE is equal to BC upon EF. So AB की जगह पे AB रखेंगे, DE के जगह पे 2AB डालेंगे because given है, and BC 8 upon EF, that is also given. So AB simplify, 1 upon 2 is equal to 8 upon EF and EF is equal to
16. Correct answer is option D. Question number 14. Find the value of x, y if centroid of the triangle with vertices x, 0, 0, y and 6, 3. 3 vertices दिया है. Centroid is equal to centroid is equal to 3, 4 given है. तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे डालना है. x plus 0 plus 6 upon 3. One more 0 plus y plus 3 upon 3 is equal to 3 and 4. So x का coordinate x plus 6 upon 3 is equal to 3. And y plus 3 upon 3 is equal to 4. So x plus 6 is equal to 9. 3 multiply होगा. X is equal to 9 minus 6, 3. Same x, y plus 3 is equal to 12. Y is equal to 12 minus 3, that is 9. So 3 or 9, option C. Option C is the correct option. Question number 15. In which quadrant does the midpoint of the line segment joining the points -1, 2 and 3, 4 lies? -1, 2 एक पॉइंट है एंड 3, 4 अनदर पॉइंट है. वो बोला है कि ये दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. सो पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला डालो. मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. So here you will get 2 upon 2, 1, and here 6 upon 2, 3. So both are positive. So कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? क्वाड्रेंट क्या रहता है? देखो, ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो भी है लाइन. This is origin, center, 0, x, y, x dash, y dash. So this is the first quadrant. First quadrant में आपको plus plus. This is the second quadrant. Here minus plus. मतलब x का पॉइंट जो है माइनस होना चाहिए, y का पॉइंट प्लस. This is the third quadrant. माइनस माइनस, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स माइनस होंगे. एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. आपको प्लस माइनस में आएगा. अच्छा, हमारा जो आया है 1 and 3 दोनों पॉजिटिव नंबर्स है. सो कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए? क्वाड्रेंट 1. ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ओके, चलो अभी देखते हैं 16 क्वेश्चन. ये इरेज कर देती हूँ. 16 क्वेश्चन रीड करो. If 241 upon 4000 is equal to 241 upon 2 to the power m. Question number 16. 241 upon 4000 is equal to 241 upon 2 to the power m and 5 to the power n. Then find the value of m plus n. Okay. So यहाँ हमें क्या करना है? 4000 का पहले एलसीएम निकालना है. चलो, we will start with 2. 2000, then 2 again, 1000, again 2, 500, again 2, 250, again 2, 125. अभी 2 नहीं जाएगा. 5. 5 2s are 5 5s are 5 5s are 5 1s are. So 1 2 3 4 5. 241 upon 2 to the power 5 multiplied by 5 to the power 3. So therefore m is equal to 5, n is equal to 3.
रिक्वायर्ड क्या है, m प्लस n इज इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट इज 8। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। डन। 16 ऑल्सो डन। 17 क्वेश्चन, लेट्स सी। 17th question is evaluate the value of 1 upon tan a। 17 I like a lot trigonometric, मुझे बहुत पसंद है trigonometry। उसमें जो भी प्रूफ वाले आते हैं वो चैप्टर, दैट इज माय फेवरेट चैप्टर। 1 upon tan a, किसे ट्रिग्नोमेट्री पसंद है मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ तो। मुझे तो बहुत पसंद है। साइन ए अपन 1 प्लस कॉस ए, इफ कोसेक ए इज इक्वल टू 2, ये गिवन है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। सो कोसेक ए इज इक्वल टू 2 है, तो चलो देखते हैं। अभी ए का वैल्यू हम पहले निकालते हैं। सो गिवन जो है कोसेक ए इज इक्वल टू 2, कोसेक के टेबल में 2 कब आता है, कोसेक ए इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर कोसेक 30। सो ए का वैल्यू क्या आया, 30। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ आपको उसके वैल्यूज डालने हैं। 1 अपन tan 30 प्लस साइन 30 डिग्री अपन 1 प्लस cos 30 डिग्री। ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपन अंडर रूट 3 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू 1 अपन 2 अपन 1 प्लस अंडर रूट 3 अपन 2 कोसेक 30। सो इसे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमें मिलेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अपन 2 अपन एलसीएम लेना है 2 प्लस अंडर रूट 3 अपन 2। सो अंडर रूट 3 प्लस 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 अपन 2 प्लस अंडर रूट 3। अगर आपको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा है, ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू, 1 अपन 2 लिखो, डिवाइड का साइन, डिवीजन का साइन दो, 2 प्लस अंडर रूट 3 अपन 2 लिखो, अगेन मल्टीप्लीकेशन का साइन देके उसे रेसिप्रोकल करो। जिनको नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल कि चलो टी मैम बोले ऐसे करना है, नो नीड टू डू दैट। चलो ये 2 अपन 2 प्लस अंडर रूट 3 है, इससे रेशनलाइज करेंगे। अंडर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। नीचे का क्योंकि प्लस है, हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हम रेशनलाइज कर पाएंगे। सो दिस विल बी अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 अपन a प्लस बी ए माइनस बी। सो आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 4 माइनस 3 here under root 3 simplified 2 upon 1 is equal to 2। करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए। ठीक है, सो यहाँ पे आपको रेशियोज का वैल्यूज जो है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, what is the value of k if 1 0 of the polynomial k minus 1, polynomial पहले लिख लेते हैं, k minus 1 x square minus 10x plus 3 is reciprocal of the other। मतलब दो जीरोस जो रहते हैं, वो बोला है कि दो जीरोस से एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। लेट द जीरोस आर अल्फा एंड 1 अपन अल्फा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो एक का अल्फा लेंगे, 1 अपन अल्फा दूसरे को लेंगे। सो हमें जो पता है, सम ऑफ द जीरोस आर माइनस बी अपन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर सी अपन ए। अच्छा, यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो k का वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज वहां पे आपको क्या आएगा, फिर से अल्फा स्क्वायर आएगा एंड k भी रहेगा। सो
usually we take product of the zeros. Alpha multiplied by 1 upon alpha is equal to C upon A. So C is here 3 upon K plus 1. 1 is equal to alpha alpha simplify हो जाएगा 3 upon K plus 1. So K plus 1 is equal to 3. K is equal to 3 minus 1, that is 2. So option है 3 plus 1 हुआ 3 minus 1. अरे कहीं तो चूके है, वही तो सोचे ऑप्शन नहीं आया, ये प्लस 1 नहीं है चिल्ड्रन, माइनस है. चलो यहाँ से फिर से और एक बार कर लेते हैं. बाय मिस्टेक मैंने प्लस लिख दिया था. K minus 1 सॉरी C ना 3 अपन K minus 1 है. So 1 is equal to 3 upon K minus 1 and K minus 1 is equal to 3. K is equal to 4. अभी आंसर आया हमारा. तो कहाँ पे है? ऑप्शन A is the correct option. चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. क्वेश्चन पढ़ो क्या है 19th का. Calculate the value of x if LCM x18 is equal to 36 and HCF x18 is equal to 2. So क्या था हमारा? Let the two integers are, अगर a और b है, product of the numbers, that means a multiplied by b is equal to LCM of AB multiplied by HCF of AB. ये था हमारा relationship between the numbers and their HCF LCM. So यहाँ पे number A की जगह पे दिया है x and 18. That means 18x we can write is equal to LCM is 36 and HCF is 2. So x is equal to 36 multiplied by 2 upon 18. 18 2s are 36. So x का वैल्यू आया हमारा 4. हो गया, x का वैल्यू है 4. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए. अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक से आया है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं छोटे छोटे. चलो, द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. अरे बहुत बड़ा है, इसको क्या करना है? वैल्यू ऑफ दिस निकालना है, राइट? द वैल्यू ऑफ दिस निकालना है हमें. चलो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अभी यहाँ पे डालेंगे, बिकॉज साइन क्यू प्लस कॉस क्यू है. ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. सो ए की जगह पे साइन थीटा है एंड बी की जगह पे कॉस थीटा है. So a plus b, that means sin theta plus cos theta whole multiplied by a square sin square theta plus cos square theta minus sin theta into cos theta upon sin theta plus cos theta. ये इसका हुआ है. उसके बाद जो प्लस का है दूसरा टर्म, वो तो एज इट इज रखना है आपको. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो यहाँ पे ही रहेगा. अभी इसे सिंप्लीफाई हो जाएगा. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. क्यों सिंप्लीफाई हुआ? ये जो ऊपर के दोनों टर्म है मल्टीप्लाई हुआ है ईच अदर. अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे. यहाँ पे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन हो गया. नाउ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये जो टर्म है ये तो कंटिन्यू रखना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा.
Now open the bracket, 1 minus sine theta into cos theta plus sine theta into cos theta. So minus plus cancel. So आंसर कितना है आपका 1, ऑप्शन बी. डन. सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर दिया आज. सो कल के सेशन में हम लोग देखेंगे सेक्शन बी ऑफ सैंपल पेपर 5. होपफुली आपको समझ में आ रहा है. एंड मुझे ये अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने के बाद छोटी छोटी चीजें जो ऐसे तो मिस्टेक किसी से होती नहीं है करके नहीं, टीचर्स हैं तो भी मिस्टेक्स होता है. तो जो मिस्टेक आइडेंटिफाई हो रहा है, जो एरर्स आइडेंटिफाई हो रहा है, सो सबको थैंक यू वेरी मच. उतना आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो इसीलिए पता चल रहा है. सो थैंक यू. आपकी सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिएगा एंड ढेर सारा शेयर कीजिए बाकी आपके फ्रेंड्स के साथ भी. So do like, share and subscribe to my YouTube channel PhD Digital Maths. Thank you. Bye bye. See you tomorrow.